childhood is entering into the adulthood. It's a teenager phase. So when body is into the physical growth, more nutritional values of foods are needed, and we have to take care of our kids, teenagers. So Ayush Shema is making healthy women, healthy India webinar series for the propagation of health care for the women. So today expert with us is Miss Mahima ma'am. She is fitness expert. Mahima is a freelance fitness trainer as well as lifestyle coach. She is born and brought up in Lucknow and having work experience in corporate trainings as a corporate trainer from past 16 years. She is having passion for helping the people to be better version of themselves and to educate them about the nutrition. She makes enthusiasm in the young teenagers, what we have seen for the workout regime and for the healthy food choices. She's helping a lot for the nutrition. So that's why I just thought today we can have her as an expert and you all can get the good guidance for the teenagers. She is nutrition and fitness expert, sports nutritionist, and exercise specialist, and she has done the courses from INFS, and she has transformed herself also beautifully, and her spirits are full of enthusiasm and good energy level. What we know about Mahima ma'am, and she has done a master's in zoology and executive MBA from IIM Kolkata. Now she is serving the young generation, to the society, to the community, to take care of their health. So health care is her mission, to give her the whole life she has devoted now. So that's why we have taken the today's topic for adolescent. Ma'am is working with good team of small teenagers we have seen. They work out with you and you give them a very good healthy food choices. So you are incorporating the good healthy habits into the young generation, youth generation. It is very difficult task for a mother also to make the food very healthy and into their choice. It's very difficult, and she is helping and motivating many people in our society, and she has made her own institution to promote for the health of women. I welcome you, Miss Mahima ma'am, on the team of Ayush Shema, and today we are happy that you are with us. Thank you so much, Dr. Bharti sir. Thank you so much for having me. And thank you for giving such an elaborate introduction. And as you rightly said, that I have been part of big corporate houses for past 16 years. And Yeah. I've been a trainer at heart, still a trainer at heart. And now I love to train people of all ages. Teenage is one of the main, I think, audience that I have. Why? And Yes. that is the reason we chose this topic of nutrition for the adolescents. Right. Because Yes. ये हमारी एक ऐसी जनरेशन है, जैसे डॉक्टर भारती ने बोला, ये एडोलेसेंस एक वो स्टेज होती है जहां पर बच्चों का एक स्पर्ट आता है. एक तो वो Yeah. छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनका बढ़ना शुरू होता है, एक बढ़त चालू रहती है. उसके बाद में जब वो एक एज पे आ जाते हैं, जब वो टीन्स में आ जाते हैं, जब एडोलेसेंस में आ जाते हैं, 10 से 18-19 साल के बीच के रेंज में, उस समय उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं. So Right. changes like so there's a spurt that comes. So आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की हाइट अचानक से बढ़ती है इस उम्र के बीच में. So they gain a lot of height, they gain a lot of there are a lot of hormonal changes which happen. That's because of that there's a lot of mood swings happen. माँ बाप कहते हैं हमारी बात नहीं सुनते, and because of the mood swing, because they are influenced by so many, and I tell you that is the main time जब आप बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा या बुरा influence डाल सकते हैं. बड़ा Very ही true. Very critical true. एक period होता है. So उस दौरान में अगर आपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल किया, उनको सही राह पे डाला, so that is the time when they start thinking about making their career. And hormonally also there's a lot of changes which is happening. A change is happening in their structure, in their bone structure.
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो उस वक्त बच्चों को समझाना और चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे से बताना है। जैसे डॉक्टर भारती ने कहा कि आजकल हम भी, बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस, आई हैव माय ओन स्टार्टअप दैट इज बी फिटोहॉलिक, एंड उसके दरमियान हम लोगों को कोच करने की कोशिश करते हैं, साथ में वर्कआउट्स भी हम लोग साथ में करते हैं। तो Yes. हमारे साथ में काफी बच्चे हैं, ये टीन एज के बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस में भी आते हैं, एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम in terms of enjoying the workout session. That is because that's also very important for the kids. अगर वो बोरिंग होगा तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने शायद किसी को बहुत कुछ बोला नहीं है खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन के लिए, बट यस वी टॉक अबाउट द गुड ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बच्चे उसको खुद ही सीख करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दे आर फॉलोइंग इट एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। यस। अगर हम अभी बात करें तो हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो Yes. भी ये बताता है कि बच्चों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। अगर आप आबादी की हमारी बात करें तो हिंदुस्तान की 2.5 मिलियन आबादी, विच इज 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज एडोलेसेंट एज पे। मतलब वो लोग हमारे भविष्य बनेंगे, हमारे देश का Yes. भविष्य बनेंगे, और अगर हमारा भविष्य ही कमजोर है तो हम किस प्रकार से देश को चलाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज द जनरेशन दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, who are doing fabulous job, they are very intelligent, they know about the word। शायद हमारे जनरेशन के वक्त में हमें इतनी चीजें नहीं पता होती थी जो आजकल के बच्चों को पता है। तो लड़कों में और लड़कियों में ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी भी एक तरीके से काफी प्रेवलेंट है, काफी प्रोमिनेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा काफी कॉमन हो गया है अभी एडोलेसेंट में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, क्योंकि उनको बहुत टाइम बैठ के पढ़ना पड़ता है। 11th-12th की जो इयर्स हैं, दे जस्ट सिट एंड स्टडी, और वो फिर फूड हैबिट्स भी ऐसी रहती हैं, दे बिंज टू द जंक्स। तो लाइफस्टाइल भी वैसा है, सेडेंट्री, और कैलोरीज इनटेक और खाना भी उस तरह का जा रहा है। तो 2 साल में जब हम देखते हैं कि 12th की प्रिपरेशन के बाद दे हैव टारगेट्स फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, दे गेन वेट, और फिर जब उनको इमीडिएटली कॉलेज जाना होता है तो बहुत कॉन्शियस फील करते हैं कि उस टाइम रियलाइज करते हैं कि बहुत हो गया है। और जब हम कॉलेज जाएंगे तो हाउ वी विल फील लाइक बॉडी शेमिंग का फैक्टर भी आता है। बहुत बॉडी शेमिंग होता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है डॉक्टर भारती की। एक जो अगर आज की बात करें, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी और भी कम हो गई है, बिकॉज एवरीबॉडी इज स्टडीइंग। उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, बैठे बैठे उनको पूरा उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग आउट फॉर वॉक, दे आर नॉट गोइंग टू द प्लेग्राउंड्स, जहाँ बच्चों का जो स्थान होता है, जहाँ उन्हें जाना चाहिए, जहाँ खेलना चाहिए, सो वो भी नहीं हो रहा है। उसके कारण भी इस वक्त बहुत ओबेसिटी बढ़ रही है। मेरे पास भी कई पेरेंट्स आए जिन्होंने बोला कि हमारा बच्चा थोड़ा वेट गेन कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। Then, but here I would like to emphasize one thing कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, I mean, if it's your kid, their habits are influenced by what their parents do. Very much true. Yeah, so as a parent you need to take care of what you are eating। आप क्या खा रहे हैं, आप बच्चों को क्या ला करके पैम्पर कर रहे हैं। और अगर बिलीव करिए, अगर आप देखें बाहर आंखें खोल के देखेंगे तो बहुत सी हेल्दी चॉइसेस अवेलेबल हैं। There are lot of healthy food available that you can prepare at home with fruits, with vegetables। तो बच्चों को अगर हम इस तरीके की आदत डालेंगे, इस तरह का एक परवरिश देंगे, हम परवरिश देने के वक्त हम बहुत सी चीजें कोशिश करते हैं सही करने में, खुद में भी और बच्चे में भी। So instead of asking your kid to do this and not to do that, it is better you also change yourself. Yeah. So importance of parental influence, like environmental factor, is also very important. How we make them for health choices. Correct. So, it is very important. And so we'll focus for this PPT. You want to explain about this PPT, ma'am?
Yeah, so we've already spoken about the populations. Yeah. I'll just like to tell you the WHO's figures. So there are around in India 30% adolescent boys are anemic. Oh, Okay, yes. and Next. 9.3 are overweight. Next. So yeah, and when it comes to girls, around 56% girls are anemic and they are overweight also. So me and Dr. Bharti, we were having a chat also sometimes back on girls being anemic, and that causes a lot of problems. A lot of problem. I would request Dr. Bharti to explain in medical terms what it is called and why it happens. Yeah. So we were talking about this adolescent period comes into the puberty changes. Like hormones are changing. Due to puberty, there will be like amenorrhea or dysmenorrhea, painful periods. Or in amenorrhea, there will be like starting of the periods, and then for many months there is no periods. So that can be also due to low hemoglobin. Your hemoglobin is already less, so there is nothing to in body to excrete out the waste endothelial layer of uterus. What it will shed, already blood is not there, and so the deworming is also very important for teenagers. We give deworming for just for small kids, but to cleanse the whole this thing, deworming once in 6 months is needed for all the age group. It's just not only for the small kids. And for dysmenorrhea, there are like menstrual cycles. Before that, there will be PMS, periods, pains, cramps. That also can be due to the low hemoglobin or iron deficiency, or body is not having the nutrition. It is a physiological process during the menstruation, but body is not able to cope up with that situation. Why? Because body is not that strong to handle this normal physiological process. So then here comes the importance of nutrition. All the factors, your macronutrients, your vitamins, minerals, micronutrients, everything. So we need to plan the healthy meal or healthy plate for our kids. So this will help enhance the physical growth, because it's the age growth also. As the physical body is changing, hormones are changing. So emotional stress is also there. They feel shy to go out also. So there are different aspects of the whole this adolescent period, like how the teenager is developing their physical body, height, weight, as well as once they are overweight or underweight, both the things are in problem. So here plays the diet very important role for the nutrition. So our nutrition should be up to the mark. It should not be undernourished or overnourished. So Correct. the dietitian is that time we need a guidance from a right dietitian who can plan according to their calories and capacities what all healthy choices they can you can add, and we need to make their plate very colorful according Yes. to their Yes. choices. Thing is, techniques are needed how you can add, and it should be our moral duty being a mother, or we have to take care of our young girls. So their nutrition, if it is important, if their body is good in nutrition, they are ready for the next phase of life, which is after marriage. So and body gets good nutrition, so body will be prepared for the fertility, for the reproductive system also. Immediately we can't add just within 2 3 months. So the nutrition takes time, body needs time for the whole body renovation. So ma'am, what are the diets you would like to advise for the obesity, if we talk about the childhood obesity? Children Sure. So I just 100 want, I 90 100 kgs, so many comes with us. yes, I just like to add one point Yes ma'am. here that anorexia and dysmenorrhea, Yeah. these are the two terms that Dr. Bharti explained very well. So, unfortunately, what happens when these kids they go to the doctor with these issues? डॉक्टर कह देते हैं उनसे हाँ ये होता है तो ये भी एक बड़ी इट्स अ सैड पार्ट हमारे नेशन का या हमारे सोसाइटी का कि कोई भी from top to bottom nobody is emphasizing on the importance of nutrition. Yes. I have been
an obese child, and probably I admitted and I thought that I was born fat and I was born fluffy and I can never lose fat. So this is for everybody watching me. If I Yes. can lose fat, you can also lose it and you can get fit. Age is no limit. जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर देर भी शुरू किया है तो भी अच्छा है. आप हमेशा शेप में आ सकते हैं. आपको ध्यान सिर्फ अपने खाने का रखना है कि आप क्या अपनी see you take your body as a plant. जिस Yeah. तरीके से आप प्लांट में खाद डालते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग तरीके की खाद डालते हैं, अलग अलग तरह से पानी डाला जाता है, उसी तरीके से आपके बॉडी को भी अलग अलग तरह से पानी और खाद, which is the nutrition, which is the food that Yeah. you are eating, that is required. So coming on to what we should have for a healthy lifestyle, for a healthy adolescence में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो सबसे important 3 things which are important for everybody, that is your food, your water and sleep. Yes. Unfortunately, in this scenario or in this age of so Hang हो गया. जागे वो उल्टा होता जा रहा है. बहुत सी यंगस्टर्स आप देखेंगे कि वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, which is not good for their health because their hormones, they get negatively impacted. So they need to ensure that they get a good sleep. It's not about just sleeping. They get a good sleep of 7 to 8 hours. And if somebody is sleeping well and sleeping right, the influence, the impact will be seen on their health and overall well-being, because their happy hormones will be activated, the stress hormones will go down, and they will perform better in their studies, in whatever they do. ज्यादा वो कहते हैं ना, चित्त ज्यादा अच्छे से लगता है. अगर आपने अच्छे से नींद अपनी पूरी की है तो आपका चित्त अच्छे से लगेगा, आप अच्छे से काम को कर पाएंगे. दूसरी चीज पानी. पानी is a wonder drink. It is a wonder drink and it is a drink better than your Red Bull. People go out for energy के लिए, हम बोलते हैं Red Bull पी लो बहुत एनर्जी आएगी. ठीक है, वो भी होता है, वो भी कुछ लोगों को, एथलीट्स वगैरह को वो जरूरत पड़ती है, but that's for a scenario. But if you are talking about a normal lifestyle, which is not a very active lifestyle, rather I'll say that in today's scenario, our lifestyle is close to sedentary. So in this scenario, it is suggested that you consume around 4 to 5 liters of water every day. Plain water will give you bundles and bundles of benefits. And Dr. Bharti is from Ayurveda, and if she wants, she can add something on having good quantity of water. Yes, it is like as you said, stay hydrated means it's like an internal bath. आप अंदर से क्लीन कर रहे हो और टॉक्सिन्स फ्लश हो रहे हैं बाहर, स्किन से, स्वेट से. तो किडनी को भी चाहिए, हर एक चीज को अंदर से भी वॉश चाहिए. जैसे हम बाहर से बॉडी को क्लीन करते हैं, तो अंदर की क्लीनिंग चाहिए. एज वेल एज हम जैसे 1.5 लीटर नॉर्मली हम आइडियली स्वेट आउट करते हैं पानी. और अगर आपकी वाटर इनटेक ही कम है तो हमारा ब्लड भी डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, थिक हो जाएगा. तो उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, और वाटर, ब्लड ही कैरियर है, सारे न्यूट्रिशन को पूरे सेल्स तक लेके जाता है. तो पानी एक माध्यम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी सब क्लीन रहे, फ्रेश रहेगा. और ज्यादा वाटर इनटेक से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करती है. स्किन अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके न्यूट्रिएंट अच्छे से मूव करेंगे. सो अनगिनत बेनिफिट है पानी पीने के. साफ पानी पीजिए, प्लेन वाटर पीजिए. अच्छा, एक और बेनिफिट है कि पानी पीने से आप वेट लूज करते हैं. लॉट ऑफ पीपल हु से पानी पिएंगे तो हम भट जाएगा पानी. लॉट ऑफ पीपल हु से कि पानी पिएंगे तो कीचड़ हो जाएगा. मैंने गमले से, पेड़ से आपको एग्जांपल दिया. इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर मिट्टी है. So there's a lot complex system which is already machinery which is there in your body, and that's like working day in and day out
flushing out the nutrient, distributing it correctly. But for that, they need some fluid, they need some medium. And when you do not drink water, body needs water. It starts, it starts retaining the body, water. Yeah. So water retention happens. Because of that, your weighing scale goes up. Yes. All right. So water also helps in losing weight. अगर मान लीजिए जैसे हमने पानी पीने की हैबिट को इनकलकेट करना है, ये जनरल हाँ, ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ मैं, हाँ, तो कुछ फ्लेवर वाटर भी जैसे लेमन ड्रॉप्स और कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पिया जाए। और आपकी टिप्स कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, क्योंकि कई बार बच्चे है ना प्लेन पानी पीना पसंद नहीं करते। हम तो अपना पानी नाप के रखते हैं कि इतना पीना है, ये खत्म हो गया, और क्वार्टर वाइज we distribute like morning 6 to 10 this much liter, 10 to 12 एक आइडल फिक्स्ड है। अब पानी पीने के लिए अपने आप हाथ चला जाता है कि हमने इतना पानी पी लिया। बट जो नई हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स ऐड करेंगे कि कैसे वो पानी करें? जरूर। तो देखिए, पानी पीना एक तो जैसे डॉक्टर भारती ने बोला बीच बीच में पीते रहे, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दें। बच्चों के लिए थोड़े कलर्स ऐड कर दें, उसमें थोड़ा स्ट्रॉबेरी डाल दें या ऑरेंज डाल दें, उसको स्लाइस करके एक अच्छा सा फैंसी सा बच्चे के लिए फ्लास्क लाएं, उसमें उनको भर करके दे, बच्चों को अच्छा लगता है। Just try to make their food, their water also beautiful. Yeah. Add in colors, थोड़ा मिंट लीफ डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, ये सब कुछ नुकसान नहीं करेगा, ये फ्लेवर देगा पानी को और पीने में अच्छा लगेगा। नींबू पानी बना सकते हैं, नींबू पानी बच्चों को दे सकते हैं। Instead of giving them this, you can have a fresh lime soda kind of a thing, very little maybe namkeen or maybe with very little sugar, so वो दे सकते हैं। तो उससे भी बच्चों को पानी पीने में अच्छा लगेगा। मिंट आइस की बना के आप फ्रिज में रख दीजिए और वो बच्चे बीच में पीते रहें, so that they will enjoy. At least I enjoy it a lot. That's very tasty. And आपकी मैम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल रही है, तो हमारे को मोटिवेशन मिलती है और लोगों को भी देखते हैं कि यस, अगर आपका भी हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। ऐसे सोचकर लोग आइडियली चलते हैं। सिर्फ ये होता है कि हमें मोटिवेशंस बनाए रखनी पड़ती है अपनी इस फिटनेस जर्नी पे। और एक एडवाइस के लिए मैं पूछना चाहूंगी आपको कि इनके लिए इनको भी डाइट प्लान्स, कोई डाइट्स की जरूरत होती है या सिर्फ हेल्दी न्यूट्रिशन, क्या आप एडवाइस करते हो? देखिए, बच्चों के बच्चा ओवरवेट है, मान लो हमारे पास 100 kg के पेशेंट, मतलब अगर ओवरवेट बहुत ओबीस है और कुछ अलार्मिंग हो रहा है तो हाँ, हम डाइट वगैरह पे देख सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि जितना अर्ली एज में आप उनकी आदतें बदलना शुरू करें। जी। Start giving them more of vegetables. उनके खाने में तरह तरह का वेजिटेबल्स ऐड करें, स्पेशली लड़के और लड़कियों में जो एनीमिक की हम बात कर रहे थे, वो एनीमिक क्यों होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी से। उनको पालक दीजिए, पालक को इंटरेस्टिंग तरीके से बना करके दीजिए, ब्रोकली दीजिए, गाजर दीजिए, चुकंदर दीजिए। ये सब रिच इन आयरन एंड रिच इन फॉलिक एसिड है, तो उसकी वजह से उनको किसी भी तरीके की कमियां नहीं होंगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो डाइट चार्ट, यस, अगर बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं बोलूंगा और ओबीस है, आप उस केस में उनका एक्टिविटी लेवल बढ़वाइए, उनसे कुछ एक्सरसाइजेस कराइए। 60 मिनट तक की एक्सरसाइज डेली करनी है, मतलब बच्चे को डेली 1 घंटे के लिए कुछ एक्सरसाइज। एंड even it has been shown and it has been proven in research कि बच्चों के लिए weight training is also very important and it comes as an enhancer in their personality, in their structure, the way they get a build. So वो weight training कर सकते हैं, resistance band और dumbbells, उससे घर के अंदर बॉडी वेट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें, कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेस करें। सो उससे उनकी जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी ब्रश अप होती है, बिल्कुल। सो वो भी उनका इम्प्रूव होता है। सो वर्कआउट answer correct, I mean straight away the answer to your question, if the kid is small, then I will prefer not giving the diet plan. However, I would
like to correct their choices of food, would like to eliminate, I would not say 100%, but yes, 90% elimination of chocolates, refined sugar, your Coke and Pepsi, things like that, Maggie. So बच्चों को आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने की कोशिश करिए, जैसे आटा है, आपका बेसन है, कुछ रागी वगैरह मिला करके, सो इस तरीके की चीजें दीजिए. प्रोटीन, या सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रोटीन plays a very important role in our body. हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे मसल, सबको बनने में, सबके डेवलपमेंट में एंड सबका स्ट्रक्चरली प्रोटीन इज पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो बच्चों की, and although this session is about the adolescents, kids, but for bachas and also for the elderly, the requirement of protein is on a higher side. And if you look at it, we hardly give any amount of protein. For kids, it is said, as per the books, it is said that 1.4 grams of protein per kg of body weight is what your kid needs. So try to give them eggs, chicken, soya bean, paneer, cheese. I think cheese बच्चों बहुत पसंद होती है. तो आप उनको चीज दीजिए, चीज से मिला करके, चीज और वेजिटेबल मिला करके सैलेड्स बनाइए. So instead of taking them out to a McD and giving them a cheeseburger, it is better you make it at home. You use your own bread because the burger is quite heavy. You use your own bread, you apply cheese, don't put in extra mayonnaise and vegetables, and make a nice sandwich for them and give it to them. So इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. जैसे वेजिटेबल्स हैं, अच्छा सा वेजिटेबल बनाइए, उसमें आप चीज डाल दीजिए, वो बच्चे को दीजिए. So you also need to look at the amount of fat and carbohydrate that you are giving. Try to give them complex carbohydrate that will give them more fullness. Satiety level would be high, and try to give them lesser oil as and very, very wisely choose the medium of cooking. So a lot of people, हमारा पुराना समय से था कि देसी घी खाओ. हाँ, so देसी घी is nutritionally very high, much more better than refined oil. Try having that. Try having coconut oil, but in moderate quantities. तला भुना, पकौड़ी, कचौड़ी, इस टाइप की चीजें लिमिट कर दीजिए. आप अभी आपका बच्चा अगर हफ्ते में 5 दिन या 3 दिन इस तरह की चीजें कर रहा है, तो आप उसे 2 पे कर दीजिए या 1 पे कर दीजिए. You know, why I'm saying that start doing these things, because see, putting a child on a diet, if the case is not that severe, if the child is not that obese, then putting a child on a diet is like also putting a lot of psychological pressure. अभी के वक्त में बच्चों को पढ़ाई लेकर के वैसे ही बड़ा psychological pressure है. Right. Plus psychologically, kids are not meeting their friends. They're not going out. They're missing out a lot of things that they used to do. They are missing the freedom. तो वो बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ जा रहा है. पता नहीं माँ बाप से वो कितना कहते हैं, कितना नहीं कहते हैं. लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें कुछ add on ना करें. We should try to make their life simpler and better. So give them good food, give them interesting food choices, give them a good amount and good quality of protein, so that they grow from inside and also glow from inside. Yeah. You know? They get the nutritional need. अभी आजकल बच्चों को बहुत, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी बैक में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है बच्चों को, पूरा दिन पे बैठे हुए. So they need to do some stretching exercises. Right. YouTube पे आप जाएंगे, आपको बहुत stretching exercises मिलेगी. वो कराइए, उनको बोलिए वो घर पे जॉग करें. रस्सी हम लोग बचपन में कूदा करते थे, अब वो कहीं खो गई है. अगर आपके पास खोई हुई रस्सी है, उसको वापस निकालिए, बच्चों को दीजिए. Ask them to do a little bit of skipping. Yes, so that is also very good intensity, high intensity workout. High intensity. और अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो इमेजिनरी रस्सी बनाकर भी कर सकते हैं. जरूर आप उसको लेकर आए, बट थोड़ा सा उनको 30 मिनट्स के लिए थोड़ा एक्टिविटी बनाएं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा शिफ्ट करें, धीरे धीरे शिफ्ट करें.
एकदम से चेंज कर देंगे कल से आज, तो मेंटल मेकअप भी नहीं हो पाता उनका। इट्स नहीं वेरी नहीं, एकदम से कोई शॉक थेरेपी नहीं है यहाँ या पर। या धीरे धीरे, and give them challenges. Ask them to skip for 10 times, and then next day increase it to 12, 11, 12, 13, 14. तो या बच्चे को खुद में एक खुद से कंपटीशन होगा, आपस में बच्चों के ग्रुप बना दीजिए, उसमें कंपटीशन कराइए। बिल्कुल ऑनलाइन जैसे क्लास हो सकती है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन बच्चों का एक कंबाइंड वर्कआउट सेशन भी हो सकता है। दे कैन मीट बिल्कुल देयर बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल। एंड हैव सम फन। सो दिस अभी इज तो व्हाट एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव हो गया है इन दिनों। बहुत We बहुत can utilize it in a positive way rather than going for another thing. और क्या। आपने कहा कि अभी स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, तो यस कर भी रहे हैं 3-4 घंटे ये लोग स्टडीज करते हैं, उसके बाद पढ़ाई के लिए भी अब ऑनलाइन कोचिंग भी इसी पे चल रही है। तो यस इस आईज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, तो आईज के लिए आईज की सूदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, थोड़ा पामिंग कीजिए, आंखों को थोड़ा रेस्ट बीच बीच में जरूर दीजिए। और इसके लिए आप गुलाब जल के कॉटन स्वैप्स लगा के भी आंखों के ऊपर रख सकते हैं, या कुकुम्बर पैक्स लगाइए, ताकि आईज ज्यादा स्ट्रेन करने की उससे डार्क सर्कल्स भी हो जाएंगे। और टीनेजर्स में एक्ने, पिंपल, ये वाली प्रॉब्लम तो काफी है ही है, क्योंकि वो तो ऑयली फूड वगैरह खाने से हो जाती है। बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, जितना स्वेट आउट करेंगे और राइट न्यूट्रिशन चॉइसेस रहेंगी, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और कुछ एडअप करना चाहेंगे मिस महिमा आप इसके लिए कुछ और? जैसे कि आपने अभी बताया, बहुत अच्छी आपने की स्ट्रेटेजीज बताई कि कैसे हम इम्प्रूव करें इनके ईटिंग बिहेवियर को एडolescents इस पीरियड में। और कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी पीरियड है, तो न्यूट्रिशन बहुत हर चीज एक टाइम पे प्रॉपर होनी चाहिए। कि प्रोटीन इंटेक आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, स्प्राउट्स कैन बी देयर, स्पल्सेस हैं, एग्स हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो और अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। और क्या ऐड करेंगे आप इसमें? कुछ विटामिन मिनरल्स के लिए कुछ टिप्स देंगे? या सी विटामिन मिनरल्स के लिए बच्चों को अलग से सप्लीमेंट देने से अच्छा है कि बच्चों को आप फ्रूट्स दें, जो भी बिल्कुल। सीजनल फ्रूट आ रहा है उनको फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, तरह तरह की। अभी तो देखिए अभी बरसात में उतना नहीं मिल रहा है, बट सर्दी आने वाली है, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ। एंड प्लीज ट्राई नॉट टू गिव देम कैंड फूड। जो प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स यस आती है ना, उसको मत दे। उसमें प्रिजर्वेटिव की वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है, कुछ रहता ही नहीं है। सो बिल्कुल। बेटर है उनको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स वो खिलाएं इंटरेस्टिंग तरीके से, सो दैट उनके जो मिनरल्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, उसकी भी पूर्ति हो। जी नींबू का सेवन अच्छे से करें इस वक्त। विटामिन सी इज गुड फॉर योर हेल्थ, and it also keeps you alkaline. It keeps your body alkaline, so you will not feel fatigued. आपको थकान नहीं राइट। लगेगी। अगर आप कहते हैं ना नींबू पानी पी लिया हम फ्रेश हो गए, लिम्का भी वैसे ही ऐड करता था कि फ्रेश हो जाओ। So हाँ freshness, why? Because it reduces the lactic acid in your body. तो उसकी वजह से आप की बॉडी एसिडिक नहीं रहती, थोड़ा अल्कलाइन हो जाती है और आप फ्रेश फील करने लग जाते हैं। तो वो तो बच्चों बिल्कुल को आप सही कह रहे हैं कि हेल्दी चॉइसेस लें, और हेल्थ के लिए जैसे एक फ्रूट जरूर ऐड करें डाइट में, एक यस फ्रूट, और एक सैलेड्स में जरूर ऐड कीजिए फाइबर में, ताकि उसमें बीटरूट भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, या कुकुम्बर है। सो रफेज ऑल्सो शुड बी एडेड, लाइक यस कॉन्स्टिपेशन की रहे उनको रफेज, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम है, इंडोर्स है इन दिनों, जैसे पेंडेमिक का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब टिप्स आपको घर में हेल्प मिलेगी, इन सबको थोड़ा सा ऐड करेंगे। वेजिटेबल सूप्स बनाइए, सूप्स नहीं तो स्मूदीज यू कैन ऐड, दैट इज यस, आल्सो स्मूदी इज अ they will फैबुलस enjoy, ऑप्शन। they will या relish the taste also for यस different styles of smoothies। तो एक मील को हमेशा थोड़ा बिल्कुल नेचुरल रॉ रखें, ताकि जल्दी से जल्दी बॉडी में जाके वो एग्जैक्टली डाइजेस्ट होके एसिमिलेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ हम आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इसमें भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हम एक फिक्स मॉडरेशन में ऐड कर सकते हैं बच्चों की डाइट के लिए, या यस। स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं हम इन चीजों को। या सो आप नट्स ऐड करिए बच्चों को। जैसे स्मूदी का ऑप्शन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, जो आप उनको दे सकते हैं। जी आप को आटा बनाते वक्त आप उसमें डाल दीजिए, थोड़ा बीट रूट डाल दीजिए। सो बिल्कुल। मेक देम गिव देम कलरफुल रोटीज, या
red color roti, they get a green color roti. Green chapati, red chapati. Yeah. Yes. So That looks very good also. that looks very nice, very हाँ. nice. If they तो want हम to eat pasta, I'm so sorry, I'm cutting That's you. okay. ना ना हाँ बताइए आप. So if they want to eat pasta, try to get them whole wheat pasta. बहुत Yeah. ऑप्शन है आजकल बाजार में, बहुत कुछ आ गया है, अच्छा भी है तो बुरा भी है. बिल्कुल. So get them whole wheat pasta, make it with cheese, you know, with a little bit of butter, and that's nice. Yeah. So Be yeah. a good treat for their taste buds also. Yes. Yes. And we can and thing is अगर आप होममेड घर का बनाते हैं देसी खाना अपने फ्लेवर के साथ उनके टेस्ट के हिसाब से, तो हेल्दी चॉइसेस तो है, ये बॉडी को ही नुकसान नहीं देगा, आपकी बॉडी और मन को भी सेटिस्फेक्शन देगा कि हमने पास्ता खा लिया और घर में खाया तो कैलोरीज भी कम है उसकी, और आपने कितनी सफाई से बनाया है वो भी आपके कंट्रोल में है, ये सब चीजें. और उनकी टेस्ट बड्स भी संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है कि हमने ये खा लिया. आप बहुत अच्छे सैंडविचेस वगैरह की रेसिपीज भी डालते हैं, मैंने देखा है. तो चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स कुछ हेल्दी रेसिपीज हो तो आप मैम का एक अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं. वो हम मैसेज कर देंगे. शी गिव्स वेरी गुड रेसिपीज आल्सो. तो वो ट्राई करके अपने टीनेजर बच्चों को सीखे, अपने और उनके लिए भी सीख लीजिए कुछ नई नई चीजें ऐड करना. हाँ, और ये वक्त ना बड़ा अच्छा है, बच्चों को आप खाना बनाना सिखाइए, खाना टेबल बनाना सिखाइए, नो खाने का तरीका सिखाइए at the comfort of your home, you know, because they would be going out, working somewhere, working in corporates, so why not start teaching them about the etiquettes also? Yes. No? So एक पर जो दो काज होगा, आप उनको अच्छा खाना बनाना भी सिखा लेंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंट तो बताना ही है ना, 12वीं के बाद तो बच्चे बाहर चले जाते हैं. बिल्कुल. तो कई हॉस्टल में भी होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. एज वी आर इन दिल्ली, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स मतलब स्टूडेंट्स आते थे जो आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, हॉस्टल में पीजी में रह रहे हैं, उनको खाने की अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वो प्रॉब्लम है. बट तो मैं उनको वैसे ही बताती हूँ कि आप स्प्राउट्स ऐड कर लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए, जो वो कुछ खुद बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि खाना तो वहाँ पे वो प्लान्ड मिलता है आपको हॉस्टल में, और उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होती है. कॉन्स्टिपेशन है और न्यूट्रिशन नहीं है तो हेयर फॉल भी होने लग जाता है बहुत ज्यादा. और ऑयल भी गंदा यूज करते हैं. एक्ने तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज्यादा, और साथ साथ वेट गेन तो है ही है. तो स्टे एक्टिव, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए. और अभी ये पैंडेमिक पीरियड ब्लेसिंग इन डिसगाइज है हम लोगों के लिए कि स्ट्रेस तो है सबको, और कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोशल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और फैमिली स्ट्रेस बहुत सारे हैं. वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि घर भी आ रहे हैं, मेड्स के बैकअप में बहुत सारे इश्यूज हैं. और जो घर में है उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो इनटू सो मच स्ट्रेस कि अब क्या क्या करें. तो आप हेल्दी चॉइसेस बनाइए, नई नई आइटम्स और हेल्दी रेसिपीज को अपने डाइनिंग टेबल पर लेके जाएं, एंजॉय करिए फैमिली के साथ. पर्सनल हैबिट्स को इम्प्रूव करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करिए. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हम खा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वही बच्चे एडमायर करते हैं, तो एक आप अपना भी इंस्पिरेशन बनाइए कि एक टाइम आपको इस तरह से खाना है, तो दे विल ऑल्सो लर्न, दे विल लर्न फ्रॉम अस ओनली व्हाटएवर वी आर डूइंग. Yeah, they will love, and then teach them things to do and don't force them. Yeah. Don't say कि तुम ये नहीं खाओगे तो मोटे हो जाओगे, वो नहीं करोगे तो. So treat them in a positive way, and as a friend, coach them and help them becoming a better person. And as Dr. Bharti said, you can follow me on Be Fitoholic by Mahima. That's on Instagram and Facebook both. I keep posting some interesting healthy recipes every week, so you can see that, you can make it for your kids, for yourself also. I will just my inbox, check my inbox if there is any question. Sure. Okay, the points mentioned are useful and worth considering. We have got feedback. We have got feedback. If you have any queries regarding the adolescent and their health issues,
You can message me on my WhatsApp message Ayukshema 9311478789. And Ayukshema is the platform where we are making the registration sites for all Ayush as well as holistic practitioners. You can make your profile and boost your reach to the more public. And app is also coming soon, so your reach will be maximum to the public. People will be able to get your online services, and you can enhance your services also along with that. So I request all Ayush practitioners and as well as fitness consultants also, you can go to the website www.ayukshema.com and make your profile. It's free of cost right now. So I welcome all of you, and I thank you, all the viewers who are watching our program. So we are making the health awareness program, Healthy Women, Healthy India webinar series. So please try to share this to as many as groups. So we are just making for the awareness, what all the changes we can do for the society and for the women's health. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को देखें, आपको अच्छा लगा तो इसको और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हम लोगों तक पहुंच पाए और ये अच्छे से मैसेज सब घर में जाए, जिन लोगों को नहीं पता, जो नहीं असेस कर पाते। और अभी कोविड के टाइम में भी कई सिचुएशंस इस तरह की आ रही है कि लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा पा रहे हैं या नहीं गाइडेंस मिल पा रही है। तो इस वक्त हम गाइडेंस दे रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं और महिमा मैम जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। Yes. टू यू, आप मैसेज करिए आयुक्षेम की वेबसाइट पे जाके, वहां पे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज करेंगे तो हमें जरूर आंसर देंगे। Till then, stay healthy, stay fit, and I thank you wholeheartedly, Mahima ma'am, sparing your So much for having me. Thank you so much for having me. It was a lovely session, and thank you for the feedback, for Yes. the person who's given that. Thank you so much. I hope it helps. If you need any kind of help, do message me on Be Fitaholic by Mahima. I'll be more than happy to help. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.